How is everyone doing? I hope you're staying home and staying safe. Remember, Ankana Ma'am will keep pestering you till you actually stay home. Or maybe I'll at least remind you, even if you don't, that's like my responsibility and duty towards the mankind. Okay, so as you know, I'm your master teacher, Ankana, and I'll be taking your social science session on what is democracy and why democracy today. Welcome to the third session and the last session of the chapter. Guys, I'm very excited. I can't believe that we have already, finished one chapter together. And it makes me so excited and happy. Okay, so let's get started. And we will start with looking at the answers to the questions that I gave you in the previous session, right? So the first answer was Saudi Arabia. The second was each person has one vote and each vote has one value. And the third, the answer to the homework question was Robert Mugabe. Please verify your answers just in case if you've answered it wrong by any chance. This is a way to rectify it, check it, and get to know. And congrats to my dear Bachas, Vilas, Pranav, and Shreya. You guys have answered the fastest and in the correct order. So congrats once again, guys. You can also have your name here on the leaderboard and it's on the screen. You just have to like, subscribe, and answer the questions fastest in the comment box, not in the live chat. That's one small mistake that we do. Okay, so this is what the session is going to look like today. We're going to talk about arguments for democracy, broader meanings of democracy, and then in the end, we'll have most important one mark questions. Remember, you have to stay tuned for those questions. It's going to be very important. It is very important from the perspective of examination. Also, guys, the advantage of having these one mark questions is it quickly helps us to do a revision, in a snap. I mean, you don't have to spend a lot of time with subjective questions. You can just easily have a look at this and it'll be enough for you to have a quick recall of what we have done in the text. So, if you remember, we stopped last. We looked at what democracy is. We spoke about what are the different features. I mean, like the definition of democracy in itself was not enough. So, we discussed what are certain features which also has to be there in order to ensure that a country is actually democratic, right? And then we also spoke whether democracy is the best form of government, and we looked at certain arguments which said that it was not, but yet we are professing democracy a lot. So we have looked at what are certain flaws, loopholes in democracy. Today we are going to talk about arguments for democracy, arguments that are in favor of democracy, because of which we are actually we have adapted democracy. Every country in the world is trying to be democratic, and this is the reason why. So accountability. And what do you mean by accountability? First, let's start with a quick compare and contrast. So China had the world's worst famine. Okay, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था वहाँ पे 1958 से 1961 में. बहुत सारे लोग मर गए थे इस famine में. 3 करोड़ लोग. गाइस आप सोचो बच्चे, 3 करोड़ लोग कितने होते हैं? अभी कोरोना से इतने लोग मरे, हमें लग रहा है कि दुनिया खत्म हो रही है. आप सोचो उस टाइम पे सिर्फ चाइना में 3 करोड़ लोग मर गए थे. इट वॉज दैट बैड. ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बुरा फेमीन था. ठीक है, उसी टाइम इंडिया में भी फेमिन ने स्ट्राइक किया था. ठीक है, यहाँ पे भी सेम हालत थी. और ऐसा नहीं था कि इंडिया एक बहुत अच्छी, बहुत वेल टू डू कंट्री थी. नो, हमारा इकोनॉमिक स्टेट जो है वो चाइना के काफी सिमिलर था, लेकिन यहाँ पे इतने लोगों की मौत नहीं हुई. ऐसा बाद में इकोनॉमिस्ट्स ने कहा और लोगों ने ऑब्जर्व किया कि शायद ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से था. शायद चाइनीज गवर्नमेंट जो थी वो क्योंकि डेमोक्रेटिक एज सच नहीं थी, उन्होंने लोगों के वेलबींग पे ध्यान ही नहीं दिया, और जो फूड की स्कार्सिटी थी वो बढ़ती गई गवर्नमेंट की इग्नोरेंस की वजह से टुवर्ड्स पीपल. लोगों को कंसिडर नहीं किया गया. और डेमोक्रेसी क्या कहती है? ये तो दुनिया, ये तो गवर्नमेंट ही लोगों की है. तो ये अप्रोच जो है वो इंडिया ने डिफरेंट लिया. इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि फूड स्कार्सिटी को रिस्पॉन्ड करे, लोगों को खाना पहुंचाए. और इस वजह से जो अलग अलग अप्रोच ली गई फेमीन से डील करने की इन दोनों कंट्रीज में, वो थी उनके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की वजह से. और इस वजह से कहा जाता है कि इंडिया में इतने ज्यादा लोग नहीं मरे.
इससे हमें क्या समझ आया कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, वो हमेशा बेटर होती है इन कंपेयर टू एनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों की, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों की जरूरत को देखता है। लोगों, नीड ऑफ द पीपल इज व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में शायद ना हो। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि जो रूलर है वो वो लोगों की परेशानियों पे ध्यान दे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, पर ये पूरी पूरी उनका तरह से उनकी चॉइस होती है। ये उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। पर डेमोक्रेसी में ये चॉइस नहीं है। This is what democracy is. It is for the people, it is of the people, and it is by the people. So people over here, the people holding offices, जो लोग गवर्नमेंट में हैं, उनके पास चॉइस नहीं है, उनको लोगों के लिए ये काम करना ही है। However, it is not a compulsion, it is not a necessity in different forms of government. इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो लोगों को ज्यादा अकाउंटेबल, ज्यादा आंसरेबल बनाती है towards others, and that is why it becomes a more accountable form of government compared to other countries, compared to other forms of government. ठीक है? तो अगर हम बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन देखें, आपको याद होगा जब हम अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स देख रहे थे कि क्या फ्लॉज हैं डेमोक्रेसी के साथ, तो हमने एक चीज ये डिस्कस की थी कि बहुत ज्यादा डिले होता है किसी भी डिसीजन को लेने में, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये हमने सिर्फ डाउन साइड देखा कि ये बुरा है। इसका एक अपसाइड भी है, इसका एक, इस चीज की एक एडवांटेज भी है। एंड व्हाट इज दैट? क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, किसी भी चीज को डिसाइड करने में रश नहीं होता है। प्रॉपर टाइम इज गिवन एंड प्रॉपर डिस्कशंस एंड मीटिंग्स हैपन। और उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। हर एक इंसान अपना कंसर्न, अपनी आइडियाज, अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से किसी भी आइडिया को, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और कोई भी डिसीजन रश में नहीं लिया जाता है। ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स गलतियों के होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देते हैं। कोई ना कोई तो पॉइंट आउट कर ही लेगा ना। So that is the case, right? So it helps us to point out the possible mistakes that could be there in the decision making, because there are so many people involved. And although it is time consuming, but it is worth that. क्योंकि शैतान का काम जल्दी का होता है ना? अच्छे लोगों का, भले लोगों का नहीं होता है। So when you take more time, there's a possibility that the that process, that decision is thought through. वो अच्छे से सोच समझ करके लिया हुआ डिसीजन है। कोई रश में, कोई रैश इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होता है। और क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व हैं डेमोक्रेसी में, डिसीजन मेकिंग में, तो वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रोवाइज करती है। मैं अकेले जो डिसाइड करूं, वो अगर मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ करूंगी, लेट्स से मेरे मम्मी, मेरे पापा, वो उनके एक्सपीरियंस की वजह से मेरी डिसीजन मेकिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। शायद कुछ कम एक्सपीरियंस लोग भी हो, वो अलग पर्सपेक्टिव ऐड करेंगे। तो ये सब लोग मिलकर जब एक डिसीजन लेते हैं, तो वो हैज टू बी अ बेटर डिसीजन देन दैट ऑफ माइन अलोन। सिमिलरली इन अ डेमोक्रेसी, the decision is made by involvement of so many people. That's why it has to be better than the decision of a single ruler taken alone. That makes democracy better than other forms of governments. पर सिर्फ इतना ही नहीं है। स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू कम टू अ कंक्लूजन और टू मेक एवरीबडी हैप्पी, टू मीट एवरीबडीज एक्सपेक्टेशन। बहुत सारा डिफरेंसेस होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस और इंटरेस्ट को हम कैसे एड्रेस करेंगे अगर एक इंसान रूल कर रहा है तो? या एक ही इंसान है जिसके हाथ में सारी बागडोर है, जिसके हाथ में सारा डिसीजन मेकिंग का राइट है? इट्स नॉट पॉसिबल। In order to satisfy, in order to approach and address, approach the concerns of everyone of such diverse background, हमें जरूरत है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी उतने डाइवर्स बैकग्राउंड से ही आए। और इसके लिए डेमोक्रेसी हमें हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी एक ग्रुप की तरफ झुकाव नहीं रहता है हमारा। अगर लेट्स से मैं सिर्फ अकेले सोल रूलर बन जाऊं, मुझे अकेले कुछ डिसाइड करना है, मेरी पार्शियलिटी होगी किसी की तरफ, शायद वो मेरी फैमिली की तरफ होगी, या मेरी स्टेट की तरफ होगी, मेरे लोगों की तरफ होगी। ये एज अ ह्यूमन हो जाता है।
है ना, जो लोग ज्यादा पसंद होते हैं या जिनको मुझे ज्यादा लग रहा है जरूरत है, मैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगी, बट हालांकि हो सकता है बाकी लोगों को भी जरूरत हो, सो दैट मैं देयर वुड बी प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स वन ग्रुप, है ना। वो सब कुछ अवॉइड होता है अगर हर तरह से हर जगह से लोग इकट्ठे होकर के आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान की जो डिजायर है वो दूसरे इंसान से ना मिले, एक ग्रुप का जो डिजायर है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो इंटरेस्ट क्लैश करे दूसरे ग्रुप से। सो डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू कम टू अ पीसफुल सोल्यूशन, ये हमें हेल्प करती है एक पीसफुल सोल्यूशन में आने के लिए, क्योंकि हर तरह के बैकग्राउंड के लोगों ने मिल करके उनकी कंसेंट से डिसीजन लिया होता है। ऑल्सो लेट्स से कोई गलत डिसीजन ले लिया है हमने, तो उसका मतलब ये नहीं कि भैया हम फंस गए यहाँ पे, इट्स नॉट अ परमानेंट यू नो थिंग वेयर यू आर स्टक एट, वो एक फिक्स्ड चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक परमानेंट विनर नहीं है, कोई परमानेंट लूजर नहीं है। अगर हमसे गलती हो गई मान लो, या रूलर से गलती हो गई, या जो लोग गवर्नमेंट में है उनसे गलती हो गई, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास हमेशा विंडो होता है। अगर ये रूलर सही नहीं है, हम नए लोगों को इलेक्ट करेंगे, अगर उन्होंने गलत कर दिया है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट टर्म में उसको ठीक करने की। So the no damage that is caused is kind of permanent. It can always be rectified. और जैसे मैंने आपको बोला, इंडिया जैसी कंट्री में हमें साथ लाने के लिए ऐसे गवर्नमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज वही होगा कि पार्शियलिटी होगी, माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज फॉर्म हो जाएंगी, clashes होंगे, and it will not be a peaceful place to be in. Society will not be calm and stable. Okay. पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये जो हमने अभी तक 3 आर्ग्यूमेंट्स देखी, ठीक है, जो फॉर डेमोक्रेसी थी, उनमें हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी की एज अ गवर्नमेंट क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो क्यों अच्छा है, क्या अच्छा हो सकता है उसमें। हमने सिटीजन्स के बारे में अब तक बात नहीं की, जबकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट सिटीजन्स, राइट। सो वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट डेमोक्रेसी grants to its citizen is dignity, respect। हर एक इंसान डिग्निफाइड होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉमिस करती है कि हम इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? पॉलिटिकली, हमारे पास पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम छोटे पुअर फैमिली से आ रहे हो, अनएडुकेटेड फैमिली से आ रहे हो, या तुम एक बहुत बड़े रिच बहुत एडुकेटेड फैमिली से आ रहे हो, तुम्हें बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। यू गोइंग टू बी द सेम फॉर द लॉ, इन फ्रंट ऑफ लॉ एवरीवन विल बी इक्वल। द पॉलिटिकल इक्वालिटी एग्जिस्ट, सबको बराबर हक मिलता है, सबका इन्फ्लुएंस, हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था ये, राइट। एवरीवन हैज इक्वल इन्फ्लुएंस, इक्वल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड राइट्स, सबको बराबर राइट्स मिलते हैं। अगर लीडर्स ने गलती कर भी दी तो सब उनको उनकी गलती के लिए अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गलती कर दिया तो वो चलता ही जाएगा। देयर विल बी अ टाइम वेयर ईदर ही विल हिमसेल्फ अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक, और पीपल विल होल्ड हिम सब्जेक्ट टू हिज मिस्टेक्स, राइट। तो या तो वो खुद से अंडरस्टैंड करेंगे, या लोग उनको पॉइंट आउट करके बोलेंगे कि तुमने गलती की है। उन्हें भी तो डर है कि अगर गलती करेंगे तो ये चलता नहीं जाएगा। There will be elections and they will lose their power and they don't want to do that. So there is no window where वो अपनी गलतियां repeat on and on करते जाएं, ठीक है। तो वो अपने कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन उन्हें रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता है? लोग, हम लोग सिटीजन्स उन्हें रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं। सो ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, अगर उन्होंने गलती की है, कुछ डिसीजन बुरा लिया है, वी आर नॉट सब्जेक्ट टू देम, ओके, वी आर पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी चलाते रहेंगे। मनमानी अल्टीमेटली किसकी चलती है? लोगों की। यानी कि हमारा रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा पावरफुल है और इक्वली पावरफुल है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, गलतियां सुधारने का मौका मिलता है हमें भी, और जो लोग इलेक्ट हुए हैं उन्हें भी। कोई गारंटी नहीं है कि हम बेस्ट डिसीजन लेकर के बेस्ट लोगों को इलेक्ट करेंगे, पर अगर हमने ऐसी गलती कर दी है, वो गलती हम आराम से सुधार सकते हैं अगले इलेक्शन में। अगर हमने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है जो बहुत ही गलत है गवर्नमेंट के लिए, वो गलती ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती है। उनकी प्रॉब्लम, उनका क्राइम, उनके मैल प्रैक्टिसेस ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकते हैं। एंड वी ऑलवेज हैव अ रूम फॉर कनेक्शंस, राइट। या तो वो खुद से सुधर जाए और हम उन्हें दूसरा मौका दें, या फिर उन्हें पता है कि उन्हें निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अपनी नॉन डेमोक्रेटिक
प्रैक्टिसेस चलाते ही जाए। जैसे कि हमने जिम्बाब्वे में भी देखा, हाँ ठीक है बहुत साल तक रह गए थे वो 1980 से लेके 2015 तक, पर एक टाइम पे उन्हें जाना ही पड़ गया, लोगों ने अपोज करके निकाल ही दिया उन्हें, राइट। तो ये 100 बात की, एक बात करेंगे हम, लेट्स क्विकली सम इट अप। डेमोक्रेसी वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है हमारा, ठीक है, इट्स नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन, इट्स नॉट अ वन स्टॉप सोल्यूशन। हाउएवर कंपेयर टू अदर्स दिस इज द बेटर ऑप्शन, ये हमारे बाकी गवर्नमेंट्स, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल ही बेटर ऑप्शन है। ये ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा डिग्निफाइड तरीका है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं हमें, राइट। It's a definitely better chance compared to others when it comes to good decision making or to rectify your mistakes. The most important part, लोग जो citizens है वो सबसे ज्यादा important हो जाते हैं यहाँ पे, उनका decision is the ultimate decision, उनके wishes सबसे ज्यादा matter करते हैं, and that is why we say that democracy is better form of government. It may not be the best, but it definitely is better than all the other forms of government. हम ये पूछ रहे थे ना कि क्यों डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर होता है, इस वजह से, क्योंकि लोग अल्टीमेटली सारा पावर होल्ड करते हैं, कहीं ना कहीं से उन तक पहुंच ही जाता है, ठीक है। सो हम ये समझ गए कि वाई डू वी कीप प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, राइट गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी जो है वो दो तरह की होती है, उन्हें अगर हम मेजर चंक्स में डिवाइड करें तो एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड द अदर टाइप इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज फॉर लार्जर पॉपुलेशन, जहां पे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहां लोग डायरेक्टली खुद ही आपस में डिसीजन मेकिंग करके गवर्नमेंट चलाते हैं। अब जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। व्हाई? क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में मॉडर्न वर्ल्ड में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कम टुगेदर, टू कम टू अ कंसेंट, टू डिसाइड ऑन द सेम थिंग, एंड आल्सो इट्स नॉट जस्ट पॉसिबल टू अकोमोडेट द डिसीजन मेकिंग ऑफ सो मेनी पीपल एंड देयर इंटरेस्ट टुगेदर। इसलिए ये सारे लोग मिलकर अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो उनके बिहाफ में डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग, क्योंकि कम पॉपुलेशन थी, कम लोग थे, लोगों का इंटरेस्ट था उस चीज में। अब आज की इन टुडेज लाइफ वी डोंट इवन हैव द टाइम टू डू इट। मैं 5 क्लासेस ले रही हूँ, मुझे कहाँ टाइम है कि मैं जाकर के डिसीजन मेकिंग करूँ। मैंने एक इंसान को इलेक्ट कर दिया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है मैंने। सो इन टुडेज वर्ल्ड ना लोगों के पास स्किल है, ना टाइम है, ना पेशेंस है टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। इसलिए मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई है अब। हालांकि कई जगह डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी चलती है, जैसे कि ग्राम सभा। इंडिया में ही एक जगह जहां पे लोग इकट्ठे मिलकर के, पूरा गांव इकट्ठे आ जाता है, सब आपस में अपना अपना ओपिनियन दे करके मेजोरिटी के हिसाब से एक डिसीजन ले लेते हैं ना, जहां पे सबके हक में हो। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग को, ऐसे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। अब जो है हमने क्यों बात की कि किस तरह की डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि गाइस डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, डेमोक्रेसी हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में एग्जिस्ट करती है, हमारे हर एक जगह इन्वॉल्व है। अगर तुम्हारे घर में, कई सारे घरों में ऐसा होता है कि सिर्फ पापा सारे डिसीजन लेते हैं, क्या उस घर के लोग सारे खुश होते हैं? नहीं। उन्होंने बोल दिया ये कॉलेज कर लो, वो पढ़ाई कर लो, यहाँ शादी कर लो, और लोग क्या होते हैं, जिंदगी भर दुखी रह जाते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी, लोगों का कंसेंट हर एक फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई फ्रेंड्स का ग्रुप हो, हर एक लोगों को अपनी ओपिनियन सुनने की आदत है, सुनाने की आदत है। दे वांट टू बी कंसिडर्ड, दे वांट टू बी हर्ड, है ना। तो इसलिए डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या हो गया? सो डेमोक्रेटिक डिसीजन इज अ टाइप ऑफ डिसीजन जहां पे आप जितने लोग भी कंसर्न है, द नंबर ऑफ कंसर्न पीपल, हर एक इंसान का कंसेंट लेकर के वी कम टू अ डिसीजन which also, unlike everyone who is going to have an impact, जिस हर एक इंसान पे उस डिसीजन मेकिंग का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उस हर एक इंसान की आवाज सुनी जाती है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय डेमोक्रेटिक डिसीजन। एंड इन टुडेज वर्ल्ड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for every individual to exist as an individual, for every individual to feel important, to know कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं। This is very important, right? क्यों?
क्योंकि किसी एक इंसान के हाथ में हम सारा पावर नहीं दे सकते हैं। कोई एक इंसान इतना पावरफुल नहीं हो सकता है, हर एक इंसान का इक्वल पावर होना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर हैज टू बी इक्वल। दैट इज ऑल्सो व्हाट फ्रीडम रियली मीन्स, एंड दैट्स व्हाई वी से कि जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है, वो सिर्फ हमारी एक जगह पे नहीं, हर जगह पे अप्लाई होनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं, हर स्फीयर ऑफ लाइफ, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में होनी चाहिए। और इससे हमें समझ आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि वो हमें इनेबल करती है, वो हमें ताकत देती है, वो हमें इस तरह से हौसला देती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वीकनेसेस हैं। आप अगर गवर्नमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, आप डेमोक्रेसी की वजह से आइडेंटिफाई कर सकोगे कि हाँ, ये जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी है ये सही नहीं है, ये गवर्नमेंट हमारे लिए सही नहीं है, इसमें ये फ्लॉज है, हमें इन पे काम करना है। ठीक है। अब जो है हर एक कंट्री जो है वो फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं होती है बच्चों, ठीक है। वो कोशिश करती है, एक आइडियल डेमोक्रेसी हमने अपने दिमाग में बना करके रखा हुआ है, हम कोशिश करती है, जो भी हमने कंडीशंस देखी हैं, जो भी फीचर्स के बारे में बात किया है, वो सब आइडियल डेमोक्रेसी है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, कहीं भी नहीं करती है। हर जगह कुछ ना कुछ फ्लॉज, कुछ मैल प्रैक्टिसेस, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि हालांकि हम फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है, हम कोशिश करेंगे आइडियली डेमोक्रेटिक होने की। एंड दैट्स व्हाई वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वी ट्राई एंड डिस्टिंग्विश, हम वो डिफरेंस लाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम मिनिमल डेमोक्रेसी है या हम एक गुड डेमोक्रेसी है। वी मे नॉट बी आइडल, आइडल इज द मोस्ट, आई मीन टॉप लेवल विच इज नॉट इजी टू अचीव, पर हम हमेशा कोशिश करते हैं उसके जितने भी पास हो सके जाने की, बाय बीइंग अ गुड डेमोक्रेसी इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट अ मिनिमल डेमोक्रेसी, कि भाई बस नाम के लिए चीजें पूरी कर दी। ठीक है। And that is why it can take many forms and various ways of taking decisions on the basis of equality. हमें हमेशा political equality, equality in every terms ध्यान में रखना है, right? So what is the strength and weakness? कहीं का भी strength and weakness क्या हमें याद रखना है? किसी भी country का fate, किसी भी country का future किस चीज पर rely करता है guys? रूलर्स पे नहीं करता है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट कि हमारी गवर्नमेंट क्या करिए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हम लेकर क्या है, इट्स द सिटीजंस हु हैव ब्रॉट देम देयर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एज सिटीजंस हम क्या कर रहे हैं। कई लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं या एपॉलिटिकल हैं या डिसइंटरेस्टेड हैं कि वो वोट तक देने नहीं जाते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, गो वोट। तुम अपने रूलर को चूज ही नहीं करोगे, गवर्नमेंट को चूज ही नहीं करोगे, तो लोग तो खराब काम करेंगे ही। आप अकाउंटेबल कैसे होल्ड कर रहे हो अगर आपने अपने एंड पे पार्टिसिपेशन नहीं दी है तो? So be good, be a good citizen, do whatever in your capacity as a citizen should be done for the betterment of the country, because democracy सिर्फ government से define नहीं होती है। Remember, always remember, democracy is all about the citizens, all about the people, राइट तो जब तक लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होगी। इट विल बी मिनिमल डेमोक्रेसी। लोग पॉलिटिक्स से डरते हैं, नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। व्हाई? If you are not going to step into the politics, it will never improvise. So be a part of the politics, choose your government, be a part of the elections that's happening, because that is what is going to determine the future of our country. We are the strength and we as citizens are the weaknesses of our country. It's not the government that we choose, and that is the most important part that we need to remember. And with this, we have come to the conclusion of the chapter. Let's quickly look at these 1-mark questions, which is going to get us good marks in the exams. So your first question is, which form of government enhances dignity the most? Monarchy, anarchy, democracy, or military rule? Dignity of the citizens, guys. Okay? Second question. Democracy is based on the fundamental principle of secularism, socialism, capitalism, or equality. और होमवर्क का एक छोटा सा क्वेश्चन. द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्राशिया, डेमोस, डेमोक्रेशिया और डेमोक्रेशिया, क्रेमोटिया. What is the right
word. Okay, and with this, we come to the end of the session. If you understood and liked the session, please don't forget to like and and subscribe. Remember, guys, to get your names in the comment, I mean, like in the leaderboard, you have to put your answers in the comment box, not just in the live chat. फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स डाल दो और देखो कैसे लीडर बोर्ड में तुम्हारा नाम आता है. If you have anything, you can always put your emails. You can always reach out to me on my email ID. Guys, I may sometimes miss your emails, but don't worry. In a day or two, I will always get back to you. Okay? Stay home, guys. Stay safe. Have a great day ahead. I will see you soon. Bye bye.